Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So let's start with our remaining topic of the chapter, that is crossing over and recombination. We have earlier studied about the crossing over and the various mechanism which are given by different scientists regarding the how the crossing over is being performed in different animals, and the holiday model was the most successful model which explained the process of crossing over. And one more thing, I have told you that you have to learn the diagram and explanation of synaptonemal complex because it is many of the time being asked in the examination. So next topic is the recombination, the last topic of this chapter. So what is recombination? अगर आपको क्रॉसिंग ओवर समझ आ गया है तो रिकम्बिनेशन ऑटोमेटिकली ही समझ आ जाएगा, और रिकम्बिनेशन के बारे में हमने पहले लिंकेज वाले चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा है. So what is recombination? It is actually the phenomena of the mixing of the maternal and the paternal traits in the offsprings, and it happens only in case of the sexually reproducing organism. तो जब पेरेंटल और दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स का जब मिक्सचर होगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो जो मिक्सिंग है, ट्रेड्स की मिक्सिंग है, उसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. एंड द ऑर्गेनिज्म सो प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एज द रिकम्बिनेंट्स. ठीक है, हमने जब मेंडल्स के लॉ किए थे, साथ में जो हमने लिंकेज किया था, तो हमने देखा था कि दो तरह की लिंकेज थी. वन वॉज द इनकम्प्लीट एंड वन वॉज द कंप्लीट लिंकेज. So in case of the complete linkage, none of the recombinants were seen because the linkage was complete in the traits which we have considered for the different crosses. Whereas in case of the incomplete linkage, many of the recombinants were seen and the recombinants were formed due to the phenomena of the crossing over. Now, genetic recombination is mostly a naturally occurring process, but we can also introduce genetic recombination by the DNA recombinant technology and many other technologies today. Now, what are the different ways in which the recombinants are produced? First is the independent assortment of genes. This is the law of Mendel, that is the independent assortment of genes, that how the genes they assort independently in different manners. We have 23 pairs of chromosomes. हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है. जब मियोसिस होगी तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर जो आपके जीन्स प्रेजेंट होंगे उनकी असॉर्टमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से होगी. ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन के असॉर्टमेंट कैसी हुई है, डिफरेंट तरह के गैमेट्स जो है वो बनेंगे. सो this is the one of the way that how the recombination that takes place. Another is the random fertilization. You all know in case of the human, many of the sperms are produced and inoculated in the female reproductive tract at the time of copulation, and it is by chance that one of the sperm that get the chance to fuse with the ovum. So जो sperm fuse करेगा that is merely a chance. ठीक है, तो जो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा, ओवम तो एक ही रिलीज होता है. यू ऑल नो, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो पढ़ लिया हुआ है पिछली क्लास में भी, और अभी भी आप फिजियोलॉजी में आप पढ़ के आए हैं. तो ओवम तो एक ही होगा लेकिन स्पर्म्स जो है वो अलग अलग है. ठीक है, तो स्पर्म्स का जो जीनोटाइप है वो उसमें जो डिफरेंट अलील्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. तो कौन सा स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज करेगा, दिस इज मियरली अ चांस. ठीक है, तो जैसे कि बेटा होगा या बेटी होगी ये भी एक चांस है, तो वैसे ही उसके ऊपर जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है उनका फ्यूजन, उनका जो कॉम्बिनेशन है ओवम के साथ होना है वो भी एक चांस है. सो दिस इज अनदर मैकेनिज्म बाय विच द रिकॉम्बिनेशन दैट कैन टेक्स प्लेस. Next is the crossing over. You all know crossing over we have studied in this chapter. Crossing over is the mechanism by which the genetic material between the non-sister chromatids of the homologous chromosome that takes place, and it occurs during the Pachytene stage of the prophase 1. ठीक है, तो जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो कौन से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, कितना एक्सचेंज हो रहा है, डबल क्रॉसओवर्स बन रहे हैं कि सिंगल क्रॉसओवर्स बन रहे हैं. अब देखिए हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल एंड मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स. सो दिस इज अगेन a mechanism by which different recombinants can be formed.
Now, in case of the asexually reproducing organism, such as your bacteria, archaea, they can also have the genetic recombination, and that takes place by the mechanisms such as transformation, conjugation, and transduction. This transformation, conjugation, and transduction, these are again the mode of the reproduction which we have studied in our junior classes in the bacteria. Now, इन केस ऑफ द आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेशन, आज की डेट में हम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हम डीएनए की करेंगे तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से, जैसा हमें डीएनए चाहिए है अपने ऑफस्प्रिंग में, उस तरह का डीएनए जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट एंड इलेबोरेट सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने प्लस टू में इसकी इंट्रोडक्शन में तो पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच द different recombinants can be produced. Now, recombinants involve रीशफलिंग ऑफ द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जीन्स. आपको पता ही है कि रिकॉम्बिनेशन जब भी होती है तो कोई ना ही तो जीन्स कम होती है, ना ही जीन्स जो है वो ज्यादा होती हैं, बट देर इज रीशफलिंग ऑफ द जीन्स बिटवीन द डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम. तो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम में रीशफलिंग होने की वजह से ही अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है ना, जैसे एक ही पेरेंट्स की अगर 2 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं तो चारों एक जैसी नहीं है. वाई? बिकॉज जब मियोसिस हुई है, जब गैमीट्स बने हैं, तो जीन्स की रीशफलिंग जो है वो अलग अलग तरीके से हुई है सब में. दे मे बी सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल ड्यू टू द रीशफलिंग ऑफ द जीन्स प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. Now, recombination that brings diversity in genotype and the phenotype of the organism. जैसे एक ही पेरेंट्स के अगर 4 बेटियां हैं तो रिकॉम्बिनेशन के होने की वजह से डाइवर्सिटी आ रही है, वो चारों के चारों अलग हैं बच्चे. ठीक है, सो रिकॉम्बिनेशन दैट ब्रिंग्स अबाउट द डाइवर्सिटी. नाउ, इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, द डीएनए रिपेयर में भी जो है रिकॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो जब आप हायर क्लासेस में डीएनए रिपेयर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि कैसे रिकॉम्बिनेशन जो है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डीएनए रिपेयर. नाउ, recombination that is controlled by a number of recombination enzymes which are produced by the specific recombination genes, and such genes have been identified in lower organisms such as Escherichia coli. Now, coming to the types of the recombination, there are different types of recombination seen in the organism. One is the general recombination. General recombination बिल्कुल सिंपल सी recombination है जो हमने अभी अपने इस चैप्टर में पढ़ी है और जिसमें हमने हॉलिडे मॉडल देखा था, जो सबसे अच्छे से जो है recombination के मैकेनिज्म को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म हमने देखा था वो था हमारा सिंपलेस्ट, और वी कैन से दैट वाज द मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ द recombination. Now, the next type of recombination is the non-reciprocal recombination, or we can say that the gene conversion. It involves the production of the 3 copies of the maternal allele and only 1 copy of the paternal allele. Maternal allele की 3 copies बन रही हैं और paternal allele की सिर्फ 1 copy बन रही है during the process of the meiosis. So this indicates that one of the 2 copies of the paternal alleles has been altered to the maternal allele. ठीक है, तो ये वाला कुछ फिनोमेना, इस तरह के फिनोमेना भी हमें देखने को मिलते हैं कई ऑर्गेनिज्म में. वन इज अनदर इज द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. व्हाट इज साइट स्पेसिफिक? साइट स्पेसिफिक यानी कि किसी पर्टिकुलर साइट पे ही जो है रिकॉम्बिनेशन हो रही है. तो इस तरह का भी मैकेनिज्म कुछ फेजेस में, जो आपके लैम्डा फेजेस या जो आपके वायरसेस हैं, वहां पर हमें देखने को मिला है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे ही जो है वो रिकॉम्बिनेशन होती है. सो व्हेन दिस मैकेनिज्म हैपेंस, इट इज कॉल्ड एज द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. नाउ, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमने बहुत अच्छे से लिंकेज में भी पढ़ लिया है पहले, सो लेट्स रिवाइज इट अगेन. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज द proportion of the recombinant offsprings produced in a genetics cross. ठीक है, कि जब हम एक क्रॉस परफॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर, जब कोई क्रॉस परफॉर्म किया जाता है तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हम लेते हैं. अब यहाँ पे आपकी बुक में जो 2 ऑर्गेनिज्म लिखा है ये गलत है. 2 ऑर्गेनिज्म नहीं लेते हैं हम, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लेते हैं, तब हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकलती है.
ठीक है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को लेंगे हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तब हमारा जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट आता है। जितने ज्यादा आप ऑर्गेनिज्म लेंगे उतने ही आपकी प्रोबेबिलिटी जो है एक्यूरेसी की वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो व्हाट इज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कि आपके कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो रिकम्बिनेंट्स आए हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स जो हमने उस प्रोजेनी में लिए हैं, और उसको हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्चुअली दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन अ जेनेटिक क्रॉस। ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट अ सिंगल क्रोमोसोम क्रॉस विल टेक्स प्लेस। हम ये मान के चलते हैं रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में कि हमारे सिंगल क्रॉसओवर्स हो रहे हैं, डबल क्रॉसओवर्स जो है वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है। डबल क्रॉसओवर्स जो है वो हम इसलिए कहते हैं कि नहीं हो रहे हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इंटरफेरेंस भी हमने पहले पढ़ लिया है कि अगर एक जगह पे क्रॉसओवर हो रहा है दैट विल इंटरफेयर in the formation of the crossover in its adjoining area। ठीक है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जब भी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं तो हमारे क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रहा है, सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है। नाउ दिस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी plays a very important role in measuring the genetic linkage। ठीक है। लिंकेज की मेजरिंग कैसे करते हैं ये भी हमने कर लिया। जैसे अगर किसी दो जीन्स के बीच का अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1 सेंटीमॉर्गन आता है तो इसका मतलब हुआ कि उन दोनों जीन्स के बीच में जो है वो डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमॉर्गन है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमॉर्गन कब आता है, जब उन दोनों के बीच का जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आती है, 1%। सो 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी produced when between the two characters it will represent that the distance between the two genes is 1 centimorgan। So this will help you to identify the loci of the different genes on the chromosome and the distance between the different genes present over the chromosome। So this distance or the location of genes will help us in making the different genetic map, or we can also name them as the लिंकेज मैप। लिंकेज मैप कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको लिंकेज वाले चैप्टर में पहले ही करवा दिया है। ठीक है। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज द मेजर विच इज यूज्ड टू फॉर्म द डिफरेंट लिंकेज मैप, एंड दिस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय दिस साइन। नाउ रिकम्बिनेशन दैट occurs during the Mendel's law of independent assortment। आपने जब Mendel's law of independent assortment किया है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब हम Mendel's law of independent assortment को समझते हैं तो we will consider a dihybrid cross। जब हमें एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी Mendel's law of independent assortment की, तो ऑब्वियस सी बात है हम बात कर रहे हैं कि दो अलील्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो वो कैसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। ठीक है। तो हमें एटलीस्ट कितने ट्रेड्स कंसिडर करने पड़ेंगे, 2 ट्रेड्स करने पड़ेंगे। तो जैसे हमने कोई एक क्रॉस ले लिया जिसमें हमने कैपिटल बी जीन्स ले ली हैं। हमने एक तरफ हमने होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल ले लिया है, एक तरफ हमने होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल ले लिया। तो जब F1 जनरेशन आएगी उसमें तो सारे के सारे एक जैसे ही इंडिविजुअल आपके बनेंगे। ठीक है ना। ये आगे आपके हम पेरेंट्स ले लेते हैं, इस तरह का हमारा एक पेरेंट्स आ गया मेल और इस तरह का आगे एक फीमेल आ गया। तो जब इनके F1 इंडिविजुअल बनेंगे वो तो एक जैसे होंगे, लेकिन जब आप F2 इंडिविजुअल बनाएंगे तो आपके गैमीट्स जो है वो 4 तरह के बनते हैं। और हमने पीनट स्केयर भी बनाया था, जिस पीनट स्केयर में हमने 16 बॉक्सेस बनाए थे। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन केस when we study the dihybrid cross to explain the Mendel's law of independent assortment। 4 तरह के गैमीट्स बने हैं। इस 4 तरह के गैमीट्स में देख रहे हैं आप कैपिटल A कैपिटल B एंड स्मॉल a स्मॉल b, दीज आर द पेरेंटल टाइप ऑफ गैमीट्स। ये इनके पेरेंट्स में भी प्रेजेंट थे, लेकिन जो अलग तरह के गैमीट्स हैं वो क्या है, कैपिटल A के साथ स्मॉल b और स्मॉल a के साथ कैपिटल B। सो दीज 2 आर द एक्चुअली न्यू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, और वी कैन से रिकम्बिनेंट गैमीट्स। ठीक है। तो ये रिकम्बिनेंट गैमीट्स कैसे आए, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर।
ठीक है, तो जब आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया है तो वहां पे मैंने डायग्रामेटिकली भी ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। तो ये जब हमारे दो अलग तरह के गैमेट्स आते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है दैट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 50%। 50% क्यों? क्योंकि चार में से दो तरह के जो आपके चार में से दो तरह के गैमेट्स हैं वो अलग आए हैं। इसका मतलब कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है इन दोनों अलील्स के बीच में कितनी है? 50%। ठीक है, और 50% जो है वो आप कब ऑब्टेन करेंगे? कब किसी दो जीन्स के बीच में जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% आएगी? व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड एट द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम or if they are present on the same chromosome, so they should be very widely separated so that the crossing over can takes place. ठीक है, तो हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जब 50 आएगी या 50 से ज्यादा आएगी वो कब आती है? या तो जो हम जीन्स कंसिडर कर रहे हैं, जो हमने ट्रेट्स कंसिडर किए हैं वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो, और अगर एक क्रोमोसोम पर भी हो तो वो इतने दूर हो कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है वो पॉसिबल है। Now, if we talk about human female, the human female that shows a higher rate of recombination than that of the male, and this is due to some meiotic drives. कुछ म्योटिक ड्राइव्स हैं जिसकी वजह से फीमेल में जो है हमें ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द मेल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द सेक्सुअली डायमॉर्फिक रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और हेट्रोक्यास्मी। ठीक है, तो ह्यूमन के केस में ऐसा होता है कि फीमेल में ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होती है और इसको हम हेट्रोक्यास्मी भी बोलते हैं। नाउ दिस इज द formula given in your book to explain the or to calculate the recombination frequency. तो recombination frequency कैसे निकालेंगे हम? Number of recombinants in progeny divided by the total number of individuals in progeny, और उसको हम 100 से divide करेंगे. So whatever percentage we get is actually our recombination frequency, and it is also helpful in making the linkage map or the genetic maps. Now lastly, what is the significance? What is the significance of the crossing recombination? अब ये जो नाम है एल्फ्रेड हेनरी स्टैटुवेन, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि he was the student of T.H. Morgan. He was undergraduate student of Thomas Hunt Morgan, who actually proposed the idea of the formation of the linkage map. ठीक है, ये बच्चा कितना मतलब टैलेंटेड था, या कितनी इसकी जो थिंकिंग थी वो कितनी वाइड थी कि ये काम कर रहा था अपने सर के साथ, और इसने किस तरह से जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को सोचा कि उसको हम यूज कर सकते हैं एक मैप को बनाने के लिए। ठीक है, सो इन्हीं को देखते हुए मॉर्गन ने एक छोटा सा मैप, मॉर्गन ने स्टैटुवेन के साथ मिलकर एक छोटा सा मैप बनाया था ड्रोसोफिला के लिए और जिसमें कि 6 ट्रेट्स को जो था एक्सप्लेन किया गया था, और ये भी बात हम पहले कर चुके हैं। एंड दीज ट्रेट्स वर येलो बॉडी, white eyes, vermilion eye, miniature wings, and the rudimentary wings. So how these alleles are separated in the chromosome, this was explained by these two people, that is the Morgan and Sturtevant, by giving the linkage map or the genetic map of this Drosophila, right? इसी तरह से आपका X क्रोमोसोम का जेनेटिक मैप जो है वो वाइनर ने भी दिया था। अब जो लास्ट है, कई बार ये पूछ लेते हैं हमसे, ये हमने अच्छे से करना है। इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टेस्ट, अगर हम कोई क्रॉस कर रहे हैं और उसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो 50% से कम आती है, ठीक है, इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दैट कम्स आउट टू बी लेस देन 50%, देन वी कैन से दैट द जीन्स आर लिंक्ड, यानी कि जीन्स जो है वो लिंक्ड हैं, उनके सेपरेट होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। और अगर हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा आती है तो हम ये मान के चलते हैं दैट द जीन्स आर अनलिंक्ड एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम। फिर से सुन लेंगे आप कि अगर 50% से कम हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि जीन्स जो है वो लिंक्ड है। लिंक्ड मतलब द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसलिए वो जीन्स जो है वो आसानी से सेपरेट नहीं हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। एंड इफ
the recombination frequency of any cross that comes out to be more than 50%, that means the genes are present on the separate chromosome and their probability of being separated during the process of crossing over that become more because they are unlinked genes and present on the separate or the different chromosome. So this is all about our chapter, that is crossing over and recombination. Next we will start mutation. So that's all for today. Thank you.